Wow! Red. Cow. Wow! Orange. Goat. Wow! Donkey. Yellow. Wow! Elephant. Blue. Wow! Horse. Green. Wow! Pink. Cow. Wow! Brown. Goat. Wow! Donkey. Purple. Wow! Elephant. Gray. Wow! Horse. Black. సింహం మరియు గొర్రె. ఒకసారి ఒక పచ్చని మైదానంలో చిన్న గొర్రె పిల్ల ఒకటి గొర్రెల మందతో కలిసి గడ్డి మేస్తూ ఉంది. అది చాలా తుంటరిది. అది అల్లరి చేస్తూ ఆటలాడుతూ తన మంద నుండి దూరంగా వెళ్ళింది. అది అక్కడ ఉన్న రుచికరమైన గడ్డి తింటూ ఎంతో ఆనందిస్తూ తన మంద నుండి దూరంగా వెళ్ళిన సంగతిని గమనించలేకపోయింది. అదే సమయంలో ఒక సింహం దానిని వెంబడిస్తున్న విషయం గమనించలేకపోయింది. ఆ గొర్రె పిల్ల ఎప్పుడైతే మంద నుండి దూరంగా వచ్చాను అనే సంగతి గ్రహించిందో అప్పుడు తిరిగి మంద వద్దకు వెళ్ళాలని నిర్ణయించుకుంది. అకస్మాత్తుగా తన ప్రక్కన ఉన్న సింహాన్ని చూచి బిత్తరపోయింది. ఆ గొర్రెపిల్ల సింహానికి లొంగిపోవటం తప్ప మరొక దారి లేదు. ఆ గొర్రెపిల్ల సింహాన్ని ఎలా అడిగింది, నీవు నన్ను తినబోతున్నావా? అందుకు సింహం ఇలా అంది, అవును, ఎలాగైనా నేను నిన్ను తింటాను. ఆ గొర్రెపిల్ల మళ్ళీ ఇలా అంది, కానీ నువ్వు నా కోసం కొంతసేపు ఆగగలవా? నేను చాలా గడ్డి తిన్నాను. నా పొట్ట నిండా గడ్డే ఉంది. ఇప్పుడు కనుక నువ్వు నన్ను తింటే ఏదో గడ్డి తిన్నట్టుగా ఉంటుంది. దయచేసి గడ్డి అరిగేదాకా వేచి ఉండు. అందుకు సింహం ఒప్పుకొని, అలాగే, నేను వేచి ఉంటాను. నీవు నా ముందే ఉన్నావు కదా, కొంత సమయం చూస్తాను. అందుకు ఆ గొర్రెపిల్ల సింహానికి కృతజ్ఞతలు చెప్పింది. కొంత సమయానికి ఆ సింహం గొర్రెపిల్లను చంపటానికి సిద్ధమైంది. కానీ ఆ గొర్రె
మళ్ళీ ఆగమంది. ప్రియమైన సింహం గారు, ఇంకా కొంచెం సేపు ఆగండి. గడ్డి ఇంకా అరగలేదు. ఇప్పుడు నన్ను తింటే చాలా గడ్డి నా పొట్టలో చూస్తారు. కొంతసేపు డాన్స్ చేయనివ్వండి. గడ్డి తొందరగా అరుగుతుంది. అందుకు సింహం ఒప్పుకుంది. ఆ గొర్రె పిల్ల కొంతసేపు డాన్స్ చేసి అకస్మాత్తుగా డాన్స్ వేయటం మానేసింది. సింహం ఏమైంది అని అడిగింది. అందుకు ఆ గొర్రె, ఇక్కడ మంచి సంగీతం లేదు. నేను సరిగా డాన్స్ చేయలేకపోతున్నాను. నా మెడలో ఉన్న ఈ గంటను మీరు చూశారు కదా, దానిని విప్పి గట్టిగా వాయించగలరా? చాలా తొందరగా డాన్స్ చేస్తాను. నా పొట్టలో ఉన్న గడ్డి తొందరగా అరిగిపోతుంది. సింహం ఆ గొర్రె పిల్లను తినాలని ఆశతో అది ఏది చెప్తే అది చేయడానికి సిద్ధమైంది. అది గొర్రె మెడలో ఉన్న గంటను విప్పి తన శక్తి కొలది గంటను మోగించింది. ఇంతలో గొర్రెల కాపరి తప్పిపోయిన గొర్రె పిల్లను వెతుకుతూ ఉండగా సింహం వాయిస్తున్న గంట శబ్దం వినిపించింది. అతడు ఆ గొర్రెను సింహాన్ని చూశాడు. సింహం వైపు కర్ర పట్టుకొని పరిగెత్తాడు. అతన్ని చూసి సింహం పారిపోయింది. ఆ గొర్రె పిల్ల రక్షించబడింది. నీతి: శరీర బలము ఒక్కటే చాలదు. కొన్ని సందర్భాలలో బలహీనలు కూడా బుద్ధి బలముతో బలవంతులను జయించగలరు. గొర్రెల కాచే బాలుడు మరియు తోడేలు. ఒక అడవి చివరిలో ఒక గ్రామం ఉంది. గొర్రెల కాచే ఒక బాలుడు తన గొర్రెల మందను అడవి దగ్గరలో ఉన్న పొలాల వద్ద మేపుతూ ఉండేవాడు. ఒకరోజు అతనికి ఏమీ తోచలేదు. తన కాలక్షేపం కోసం ఏదైనా చేయాలని అనుకున్నాడు. అతడు గట్టిగా ఇలా అరిచాడు, తోడేలు బాబో, తోడేలు! తోడేలు నా గొర్రెని ఎత్తుకుపోతుంది! ఈ కేకలు విని పొలములో పనిచేస్తున్న కొందరు ఆ బాలుని వద్దకు పరిగెత్తుకుని వచ్చి, తోడేలు ఎక్కడ ఉంది అని అడిగారు. ఆ బాలుడు నవ్వి ఇలా అన్నాడు, నేను సరదా కోసం అరిచానంతే, ఇక మీరు వెళ్ళొచ్చు. ఆ బాలుడు కొన్ని రోజుల దాకా తన సరదా కోసం ఇలాగే చేస్తూ ఉన్నాడు. కొన్ని రోజుల తర్వాత ఆ బాలుడు ఎప్పటిలాగానే చెట్టు మీద కూర్చొని పాటలు పాడుతూ ఉండగా తోడేలు ఒకటి వచ్చింది. ఆ బాలుడు గట్టిగా అరిచాడు, తోడేలు బాబో, తోడేలు! తోడేలు నా గొర్రెను ఎత్తుకుపోతుంది! అక్కడికి రావడానికి ఎవ్వరూ లేరు. అతడు మరలా అరిచాడు, రక్షించండి! తోడేలు వచ్చింది, రక్షించండి! అయినా రక్షించడానికి ఎవ్వరూ రాలేదు. ఆ ఊరిలోని వారు ఆ బాలుడు తమను ఆట పట్టిస్తున్నాడని భావించి ఎవ్వరూ వెళ్ళలేదు. తోడేలు గొర్రెను పట్టుకుని వెళ్ళిపోయింది. నీతి: అబద్ధం నమ్మకాన్ని పోగొడుతుంది. ఒక అబద్ధికుడు తను నిజం చెప్పినా ఎవ్వరూ నమ్మరు. 3 गायों एक जंगल के पास एक हरे और ताजा चरागाह में रहते थे। एक सफेद गाय, एक काला गाय और एक लाल भूरा गाय। गायों एक दूसरे के प्रति दयालु थे। वे घास के मैदान में एक साथ चराते थे और एक दूसरे के पास सोते थे। एक दिन एक लाल बुरा शेर घास के मैदान पर जंगल से बाहर निकलने के लिए हुआ। यह भूखा था और शिकार की तलाश में था। गायों की दृष्टि को पकड़ने पर यह खुश हो गया, लेकिन उन पर हमला नहीं कर सका क्योंकि वे एक साथ थे। तो शेर एक गोला पत्थर के पीछे बैठा और धैर्यपूर्वक तब तक इंतजार कर रहा था जब तक गायों एक दूसरे से अलग न हो। हालांकि गायों एक दूसरे से अलग करने के लिए बहुत चालाक थे। वे जानते थे कि यदि वे एक साथ थे तो कोई शिकारी उन पर हमला नहीं कर सकता था। शेर 2 या 3 दिनों के लिए पास में घुसपैठ कर रहा था, लेकिन गायों एक साथ रहना जारी रखा और एक दूसरे से अलग नहीं होगा। शेर अधीर हो गया। यह एक योजना के बारे में सोचा। यह गायों की ओर चला गया, उन्हें बधाई दी और कहा, तुम मेरे दोस्त कैसे हो? ठीक है, आप मैं हाल ही में
व्यस्त रहा हूँ, इसलिए नहीं आ सकता और आपसे मिल सकता है। आज मैंने आपको मिलने आया। लाल भूरे रंग की गाय ने कहा, महोदय, आपके आने से हमें प्रसन्नता हुई है और हमारे चरागाह को उज्जवल कर दिया गया है। सफेद और काले गायों दोनों अपने दोस्त लाल भूरे रंग की गाय ने जो कहा और परेशान थे, उनकी परेशान पर दुखी थे। उन्होंने एक दूसरे से कहा, लाल भूरे रंग की गाय का मानना है कि शेर क्या कहता है। क्या यह नहीं जानता कि शेर अन्य जानवरों को केवल शिकार करने के लिए पूछते हैं। जैसे जैसे दिन बीत चुके थे, लाल भूरे रंग की गाय शेर से अधिक जुड़ी हुई थी। काले गाय और सफेद गाय ने शेर के साथ दोस्ती के खिलाफ सलाह दी, लेकिन उनके प्रयास व्यर्थ थे। एक दिन शेर ने लाल भूरे रंग की गाय से कहा, आप जानते हैं कि हमारे शरीर का रंग अंधेरी है और सफेद गाय के शरीर का रंग हल्का है। आप यह भी जानते हैं कि हल्का रंग अंधेरे रंग के विपरीत है। अगर मैं सफेद गाय खाऊंगा तो यह बहुत अच्छा होगा, ताकि अब हमारे बीच कोई फर्क नहीं पड़ेगा और हम अच्छी तरह से साथ रह सकेंगे। लाल भूरे रंग की गाय ने शेर के तर्क को स्वीकार कर लिया और काले गाय को व्यस्त रखने के लिए बात करना शुरू कर दिया, ताकि शेर सफेद गाय खा सके। सफेद गाय अकेली रह गई थी और मार डाला गया था, जबकि काले और लाल भूरे रंग की गायों निष्क्रिय बातचीत में व्यस्त थे। शेर ने सफेद गाय को भस्म करने के बाद 2 या 3 दिन बीत गए। यह फिर भूखा हो गया। इसे लाल भूरे रंग की गाय कहा जाता है। गाय ने उत्तर दिया, हाँ महोदय। शेर ने कहा, मेरे शरीर का रंग और आपके शरीर का रंग लाल भूरा दोनों है और काला हमारा रंग के साथ नहीं जाता है। अगर मैं काले गाय खाऊंगा तो यह बहुत अच्छा होगा, ताकि इस जंगल में हम सभी एक ही रंग के होंगे। लाल भूरे रंग की गाय ने इस तर्क को स्वीकार किया और काले गाय से दूर चले गए। शेर ने जल्द ही काले गाय पर हमला किया और खा लिया, और लाल भूरे रंग की गाय के लिए यह खुशी से भरा हुआ था कि उसे नहीं पता था कि क्या करना है। यह घूमता हुआ और चरागाह और कूद से कहा, यह केवल मुझे है जिसने शेर का रंग रखा है। कुछ दिनों बीत गए। बाद में शेर भूख लगी। यह गर्जन और कहा, हे लाल भूरे रंग की गाय, तुम कहाँ हो? लाल भूरे रंग की गाय बाई से हिलाकर आगे बढ़ी और कहा, हाँ महोदय। शेर ने कहा, आज यहाँ तुम्हारी बारी है, कूद को तैयार करो, मैं तुम्हें खाना जा रहा हूँ। बहुत डर और डरवानी लाल भूरे रंग की गाय ने कहा, महोदय, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। मैंने जो कुछ भी तुमने मुझसे करने के लिए कहा था मैंने किया, फिर भी तुम मुझे क्यों काटना चाहते हो? शेर रोया और कहा, मेरे पास कोई दोस्त नहीं है। यह कैसे संभव है कि शेर एक गाय के साथ दोस्ती करता है? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लाल भूरे रंग की गाय ने कितना आग्रह किया और विनती करना किया। शेर ने अपने शब्दों को स्वीकार नहीं किया। अंत में गाय ने कहा, श्रीमान, कृपया मुझे खाने से पहले 3 बार रोने दे। शेर ने कहा, ठीक है, जल्दी जल्दी करो। लाल भूरे रंग की गाय ने रोया। मुझे उसी दिन खाया गया था जब सफेद गाय खाना गया था। मुझे उसी दिन खाया गया था जब काला गाय खाया गया था। मुझे उसी दिन खाया गया जब मैंने शेर के साथ दोस्त बनाए।
शेर ने लाल भूरे रंग की गाय को बहुत जल्दी खा लिया। फिर उसने खुद से कहा, मैंने इस जंगल में अपना काम पूरा कर लिया है। अब मैं बेहतर अन्य जंगलों में जाना था। नैतिक एकता के बिना कोई भी समूह आसानी से नष्ट हो जाएगा। शेर और खरगोश। एक बार एक भयंकर शेर एक जंगल में रहते थे। उसने हर दिन कई जानवरों को मार डाला। तो जंगल के सभी जानवरों ने एक बैठक आयोजित की। उन्होंने इस मामले के बारे में बात की। चालाक लोमड़ी ने कहा, चलो हम शेर को हर दिन एक जानवर की पेशकश करते हैं। आइए उससे प्रार्थना करें कि अधिक मांग ना करे। जानवर उसके पास गए और कहा, हे जंगल के राजा, हम आपको एक प्रस्ताव देने आए हैं। यदि आप एक दिन में इतने सारे जानवरों को मार देते हैं तो जल्दी ही कोई भी नहीं छोड़ा जाएगा। हम हर दिन आपके गुह पर एक जानवर बेच देंगे। एक दिन केवल एक जानवर खाते हैं। शेर ने सोचा, मुझे अपना खाना खोजने के लिए नहीं जाना पड़ते। यह एक अच्छा विचार है। फिर उसने जानवरों से कहा, ठीक है, मैं तुम्हारा प्रस्ताव स्वीकार करता हूँ। जानवर खुशी से दूर आए। उस समय से एक जानवर शेर की मांद में जाएगा। एक दिन यह एक पुराने खरगोश की बारी थी। सड़क पर जाने के दौरान उसने सोचा, मरने से पहले मुझे शेर पर एक चाल चालनी होगी। इस प्रकार सोचते हुए वह धीरे धीरे चलने लगा। वह शेर की मांद में आया। शेर रोया। तुम इतनी देर क्यों हो? खरगोश ने कहा, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ महोदय। एक और शेर इस जंगल में आया है। उसने मुझे रास्ते पर रोक दिया। वह तुम्हें मारना चाहता है। शेर ने क्रोध में कहा, मुझे उसके पास ले जाओ, मैं उसे एक बार मार दूंगा। मेरे पीछे आओ। खरगोश ने शेर को गहरे कुएं में ले जाया। खरगोश ने कहा, यहाँ देखो और आप अपने दुश्मन को देखेंगे। शेर ने कुएं में देखा और स्पष्ट पानी में अपना चेहरा देखा। वह रोया और गूंज उसके पास वापस आ गया। उसने सोचा कि एक और शेर कुएं के अंदर था। वह कुएं में कूद गया और मर गया। खरगोश अपने दोस्तों के पास वापस गया और उसने कहा कि क्या हुआ था। सभी जानवरों ने उन्होंने जंगल के नायक के रूप में बधाई दी। नैतिक चतुरता एक दुश्मन को दूर कर सकती है। गाय और शेर। एक बार गाय थी और उसका नाम डोला था। उसके पास एक सुंदर छोटा बछड़ा था। चराई के लिए जंगल जाने के लिए डोला का इस्तेमाल किया जाता था। वह शाम को अपने बहाना में लौट रही थी जब उसने अपना बछड़ा दूध पीने के लिए इस्तेमाल किया। वह अपने बछड़े से बहुत प्यार करती थी। एक दिन डोला चराई के लिए जंगल गया है। उस दिन एक शेर ने उसे जंगल के रास्ते पर पकड़ा। शेर गाय को मारना और खाना चाहता है। जब गाय को मारने के लिए शेर खरीदा गया था, गाय ने एक अनुरोध किया था। उसने शेर से कहा कि मुझे घर पर एक बछड़ा मिला और बछड़ा बहुत भूख लगी है। अगर तुमने मुझे अभी मार डाला तो बछड़ा भूख में मर जाएगा। इसलिए उसने शेर से थोड़ी देर के लिए उसे छोड़ने का अनुरोध किया ताकि वह अपने बछड़े को दूध दे सके। शेर ने गाय के अनुरोध को सुना और कहा, यह संभव है क्योंकि अगर मैं तुम्हें छोड़ दूंगा तो आप फिर से वापस नहीं आ जाएंगे। इस गाय को सुनकर शेर ने कहा, मैं अपने बछड़ों को दूध देने के बाद वापस आऊंगा। शेर ने डोला के बात सुनी। उसने कहा, तुम जाओ, लेकिन आपको बहुत जल्दी वापस लौट आना होगा। गाय ने
तुरंत उसे बहाया और वह अपने बछड़े को दूध देती है। तब उसने जंगल के लिए शुरू किया और कहा कि उसका बछड़ा जल्दी ही वापस आ जाएगा। वह जंगल पहुंची और शेर के लिए रोना दी। शेर आया और गाय को देखा, सोचा था कि शेर भूख लगी थी। वह गाय को वापस देखकर आश्चर्यचकित हो गई। शेर ने किसी भी जानवरों से ऐसी सच्चाई, नैतिकता और ईमानदारी नहीं देखी है। वह अन्य जानवरों के इस तरह के लक्षण को देखकर बहुत खुश हो गया। उसने गाय को बुलाया, वह अपनी ईमानदारी से अभिभूत है। उन्होंने कहा, मैं तुम्हें नहीं खा सकता और मैं भविष्य में आपकी रक्षा करूंगा। मैं चाहता हूँ कि आपके पास जो लक्षण है वह अन्य जानवरों के लिए फैल जाना चाहिए। ये कहकर शेर जंगल में वापस चला गया। गाय सूर्योदय से पहले अपने बछड़े में वापस लौट आई।